बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे दैट इज डिमांड एस्टिमेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस। In last lecture we have completed demand analysis in which we have covered the points market equilibrium, comparative statics, price elasticity of demand and its relation to MR, TR and income elasticity of demand and cross price elasticity of demand. In today's lecture we will cover first of all what is demand estimation. After that we will complete the 7 steps for demand estimation, statement of a theory or hypothesis, model specification, data collection, estimation of parameters, checking goodness of fit, hypothesis testing and forecasting. These are the 7 steps of demand estimation. In these steps we basically run the regression analysis or we analyze the regression of OLS. In today's lecture we will cover the 4 steps that are statement of a theory or hypothesis, model specification, data collection and estimation of parameters. So start from what is demand estimation. To use these important demand relationship in decision analysis, we need empirically to estimate the structural form and parameters of the demand function that is called demand estimation. Demand estimation इसके नेम से लग रहा है कि हम डिमांड को एस्टिमेट करते हैं। जब भी कोई फर्म है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपनी डिमांड को कैसे एस्टिमेट करेगी और उसकी बेस पर अपनी प्राइसेस और प्रोडक्शन को डिसाइड करेगी। तो इस डिसीजन मेकिंग एनालिसिस में जो स्ट्रक्चरल फॉर्म होती है, हम एक स्ट्रक्चरल फॉर्म बनाते हैं डिमांड की। जैसे हमें यहाँ पर एक इक्वेशन दी हुई है QDX, क्वांटिटी डिमांड फॉर कमोडिटी X इज इक्वल टू PI, PC, PS and T. P stands for price of X, I stands for income, PC stands for prices of complementary goods, PS stands for prices of substitutes and T stands for taste. तो यहाँ पर हमने एक डिमांड फंक्शन बताया है, या डिमांड इक्वेशन यहाँ पर हमें दी हुई है और इसके नीचे हमें इनका रिलेशनशिप भी दिया हुआ है। जहां पर आपको माइनस साइन नजर आ रहा है वो हमें ये शो कर रहा है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के दरमियान नेगेटिव रिलेशनशिप है, which means if price increases the quantity demand of that product will decreases. Similarly income and quantity demand का positive relationship है. If income increases the quantity demand for that product also increases. Price of complements, अगर price of complementary goods increase होती है तो demand for goods decrease हो जाती है। And similarly price of substitute increase होगी तो उस substitute की quantity demand increase हो जाएगी। And अगर consumer का taste change हो जाता है तो उससे उस चीज की demand भी increase हो जाएगी। इसमें भी positive relationship है। The demand for a commodity arises from the consumer's willingness and ability to purchase the commodity. यहाँ पर हमें डिमांड की डेफिनेशन दी हुई है कि डिमांड में कंज्यूमर की विलिंगनेस और एबिलिटी, इन 2 पॉइंट्स को देखा जाता है और उससे कंज्यूमर की डिमांड अराइज होती है। कंज्यूमर डिमांड थ्योरी postulates that the quantity demanded of a commodity is a function of or depends on the price of the commodity, the consumer's income, the price of related commodities and taste of the consumer. अभी जो ऊपर हमने ये फंक्शन देखा है, इसी फंक्शन को यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें हमें डिमांड किस चीज पे डिपेंड करती है? प्राइस पे,
कंज्यूमर्स इनकम जिसको हमने आई से डिनोट किया है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स या रिलेटेड कमोडिटीज, ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट्स इन दोनों की प्राइसेस इसमें आएंगी, एंड टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर जिसको हमने टी से डिनोट किया है। In general, we will seek the answer for the following questions. How much will the revenue of the firm change after increasing the price of the commodity? कि अगर एक फर्म एक चीज की प्राइस चेंज कर दे तो उससे उसका रेवेन्यू कैसे चेंज होगा। अगर प्राइस इंक्रीज हो जाए तो उससे कितना रेवेन्यू या कितनी इनकम आएगी वहां से। How much will the quantity demanded of the commodity increase if consumers income increase? अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाए तो वो चीजों की डिमांड कितनी बढ़ाएगा। What if the firms double its ads expenditure? अगर एक फर्म अपना एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दे तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसकी प्रोडक्शन पे। What if the competitors lower their prices? अगर एक फर्म के कंपेटिटर उस चीज की प्राइस कम कर रहे हैं तो उस फर्म पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उस प्राइस कम करने का। Firms should know the answers the above mentioned questions if they want to achieve the objective of maximizing their profit or maximizing their value। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो फर्म को इनका आंसर पता होना चाहिए या इन सिचुएशन में उसका सोल्यूशन पता होना चाहिए ताकि वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमम कर सके। द आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम। द डिमांड कर्व फॉर ए कमोडिटी इज जनरली estimated from market data on the quantity purchased of the commodity at various price over time or various consuming units at one point in time। नॉर्मली जो हम डिमांड कर्व डेराइव करते हैं वो हमें मार्केट में डिफरेंट प्राइसेस से जनरेट होता है और वो एक सर्टेन टाइम में भी हो सकता है और एक ही चीज के डिफरेंट टाइम में हम वो पॉइंट्स ले लें तो उससे भी हम डिमांड कर्व डेराइव कर लेते हैं। एक टाइम में हम कवर करेंगे तो दैट इज टाइम सीरीज डेटा और डिफरेंट टाइम में हम उसको देखेंगे तो दैट इज क्रॉस सेक्शनल डेटा। सिंपली ज्वाइनिंग प्राइस्ड quantity observations on a graph does not generate the demand curve for a commodity। नॉर्मली जब हम प्राइस और क्वांटिटी डिमांड को एक ग्राफ में बनाते हैं तो हमारे पास एक डिमांड कर्व आता है, तो दैट डजंट मीन्स कि वो हमारे पास एक कमोडिटी का डिमांड कर्व शो कर रहा है। द रीजन इज दैट ईच पीरियड प्राइस्ड क्वांटिटी ऑब्जर्वेशन इज गिवन बाय द intersection of a different and unobserved demand and supply curve of the commodity। In other words, the difficulty of deriving the demand curve for a commodity from observed price quantity points that results from the intersection of different and unobserved demand and supply curves for the commodity is referred to as identification। The identification problem। यहाँ पर हमें एक फिगर दी हुई है। In the following demand curve, observed price quantity data points E1, E2, E3 and E4 result respectively from the intersection of unobserved demand and supply curves D1 and S1, D2 and S2, D3 and S3, D4 and S4। इस डायग्राम में हमें प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का रिलेशनशिप दिया हुआ है। इसमें जो आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही है जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है दैट इज डिमांड कर्व और इसके ऊपर हमें 3-4 पॉइंट्स दिए हुए हैं E1, E2, E3 एंड E4। अब यहाँ पर हमें अनऑब्जर्व्ड डिमांड एंड सप्लाई कर्व भी दिए हुए हैं D1 और उसके साथ S1, D2 and S2, D3 and S3, D4 and S4। Therefore, the dashed line connecting observed points
E1, E2, E3 and E4 is not the demand curve for the commodity. The derived demand curve for the commodity, suppose say D2, we allow the supply to shift or to be different and correct through regression analysis for the forces that cause demand curve D2 to shift or to be different, as can be seen at points E1 or E1 dash, E2 dash. यहाँ पर हमें एक आइडेंटिफिकेशन का प्रॉब्लम दिया हुआ है. आइडेंटिफिकेशन का मतलब कि जहां पर आपको एक डॉटेड डाउनवर्ड लाइन नजर आ रही है, उसमें हमारा डिमांड कर्व एक लीनियर और डाउनवर्ड है. लेकिन अगर हम बहुत सारी अनऑब्जर्व्ड ऑब्जर्वेशंस ले लें तो उस केस में हमारे डिमांड कर्व्स डिफरेंट हैं, जैसे D1, D2, D3 एंड D4, और हर डिमांड कर्व के ऊपर सप्लाई भी डिफरेंट है, S1, S2, S3 एंड S4. तो E1 और E2 डैश, ये दो पॉइंट्स जो आपको नजर आ रहे हैं, E1 हमारा एक डिमांड कर्व है और E2 डैश पर हमारा D2 और S1. तो इसका मतलब एक ही सप्लाई कर्व के ऊपर हमारे पास दो डिमांड कर्व्स आ रहे हैं. दैट इज आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम. उसके बाद स्टेप्स फॉर डिमांड एस्टिमेशन, स्टेटमेंट ऑफ ए थ्योरी और हाइपोथेसिस, मॉडल स्पेसिफिकेशन, डेटा कलेक्शन, estimation of parameters, checking goodness of fit, hypothesis testing and forecasting. First step is statement of theory or hypothesis. जब भी हम किसी चीज की डिमांड फाइंड करते हैं या एस्टिमेट करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं या उसमें हम अपनी स्टेटमेंट देते हैं. Identify the relevant variables and obtain data on the variables. सबसे पहले हम वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उसके ऊपर हमें डेटा भी अवेलेबल होना चाहिए. इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स आर इंक्लूडेड इन द रिग्रेशन एनालिसिस. ये जो 7 स्टेप्स हमने पढ़े हैं, इन 7 स्टेप्स में हमारे पास एक एनालिसिस भी आएगा जिसको हम रिग्रेशन एनालिसिस कहते हैं. तो यहाँ पर रिग्रेशन एनालिसिस के लिए हमने सबसे पहले इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स को डिसाइड करना है. द रोल ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, द अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा एंड अदर कॉन्स्ट्रेंट्स हेल्प इन डिटर्मिनिंग विच वेरिएबल्स टू बी इंक्लूडेड. तो थ्योरी में सबसे पहले हमने ये डिसाइड करना है कि किस बेस पर हमने कौन से वेरिएबल्स को एस्टिमेट करना है. तो उसमें हमें एक इकोनॉमिक थ्योरी बताएगी उसकी बेस. उसके अलावा हम जिस वेरिएबल को ले रहे हैं उसका डेटा चेक करेंगे कि अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा है उसका, और उसके अलावा उस पर कोई और अदर कॉन्स्ट्रेंट्स या रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है उस वेरिएबल को डिटरमिन करने के लिए. सेकेंड इज मॉडल स्पेसिफिकेशन. What variables to be included and what mathematical format followed. हमने सेकेंड स्टेप में ये डिसाइड करना है कि कौन से वेरिएबल्स अब हमने इंक्लूड करने हैं और कौन सा मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करना है. नीड टू फॉर्मुलेट मेनी ऑल्टरनेटिव मॉडल्स. डिटर्मिनिस्टिक, सर्टेनिटी एंड स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप. यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव मॉडल्स हो सकते हैं, तो हम उसको भी फॉर्मुलेट कर सकते हैं, और जो मॉडल हम यूज कर रहे हैं वो डिटर्मिनिस्टिक होना चाहिए. डिटर्मिनिस्टिक का मतलब उसमें श्योरिटी होनी चाहिए, वो अनश्योर ना हो. एंड स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप, और हमें उसका स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप भी पता हो. जैसे अभी हमने जो क्वांटिटी डिमांड का फंक्शन देखा है तो उसमें उसके साथ प्राइस का रिलेशनशिप है, तो हमें उस रिलेशनशिप का भी पता है कि उसमें थ्योरी के अकॉर्डिंग नेगेटिव रिलेशनशिप है. इट इज अज्यूम्ड टू बिगिन विद दैट द रिलेशनशिप इज डिटर्मिनिस्टिक. विद अ सिंपल डिमांड कर्व द रिलेशनशिप वुड बी देयरफॉर. अब यहाँ पर अगेन वही फंक्शन लिया हुआ है, QD इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस. तो इसमें हमें एक थ्योरेटिकल रिलेशनशिप भी पता है और इसकी स्टैटिस्टिकल और फंक्शनल फॉर्म भी हमने इसमें कन्वर्ट कर ली.
For the purpose of illustration, let us assume that we have obtained cross-sectional data on college students of 30 randomly selected college campuses during a particular month with the following equation. यहाँ पर हमें एक टाइम पीरियड में डिफरेंट कॉलेजेस का डाटा दिया हुआ है 30 स्टूडेंट्स का. इसको हम क्रॉस सेक्शनल डाटा कहते हैं कि एक टाइम है और उसी 30 स्टूडेंट्स का डाटा हमने डिफरेंट यूनिट्स से लिया है. तो यहाँ पर हमारे पास एक डिमांड फंक्शन दिया हुआ, डिमांड इक्वेशन दी हुई है. क्यू डी इज इक्वल टू ए प्लस B1 P प्लस B2 T प्लस B3 PC प्लस B4 L प्लस म्यू. अब ये इक्वेशन हमें क्या शो कर रही है? वेयर QD इज क्वांटिटी डिमांडेड फॉर पिज्जा. यहाँ पर हम एक कॉलेज स्टूडेंट का पिज्जा से रिलेटेड एक डाटा कलेक्ट कर रहे हैं. तो क्वांटिटी डिमांड फॉर पिज्जा इज ए फंक्शन ऑफ या इज इक्वल टू A प्लस B1 P. P क्या है? एवरेज प्राइस ऑफ स्लाइस ऑफ पिज्जा. स्लाइस ऑफ पिज्जा की प्राइस. T इज एनुअल ट्यूशन एज प्रॉक्सी फॉर इनकम. T में हमने ट्यूशन ली है. PC प्राइस ऑफ केन्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स. सॉफ्ट ड्रिंक्स की प्राइस है. L लोकेशन ऑफ कैंपसेस. लोकेशन ली है हमने. और यहाँ पर A इज कांस्टेंट वैल्यू और Y इंटरसेप्ट. A हमारे पास कोई भी कांस्टेंट और न्यूमेरिकल वैल्यू होगी. B कोफिशिएंट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स टू बी एस्टिमेटेड. B1 B2 B3 B4 ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं उनको हम कोफिशिएंट्स कहते हैं या उनको हम स्लोप कहते हैं. A इज इंटरसेप्ट एंड ऑल B's आर द स्लोप. तो यहाँ पर B हमें उस चीज की स्लोप की वैल्यू बता रहा है. एंड म्यू, एंड में जो हमें म्यू दिया हुआ है दैट इज एरर टर्म स्टैंडिंग फॉर ऑल अदर ओमिटेड वेरिएबल्स. तो कोई भी हम जब डिमांड एस्टिमेट करते हैं, कोई भी इक्वेशन इस तरह से बनाते हैं तो उसमें कोई ना कोई एरर टर्म जरूर होता है. तो इसलिए हम इसमें एंड में प्लस म्यू लगाते हैं, जिसका मतलब कि इसमें एरर भी हो सकता है. और इसी तरह से इनकी इलास्टिसिटीज दी हुई हैं. यहाँ पर हमें जो B1, B2, B3 और B4 ये हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं और इन कोफिशिएंट की वैल्यूज कैसे निकलेंगी, ये हमारे पास इस तरह से इलास्टिसिटीज से निकलेंगी. जैसे B1 हमारे पास यहाँ पर P और QD के रिलेशनशिप को शो कर रहा है. तो इसकी इलास्टिसिटी हमारे पास निकलेगी DQ डेरिवेटिव ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ प्राइस मल्टीप्लाई बाय P ओवर Q. तो डेरिवेटिव वाली टर्म हमारे पास B1 है मल्टीप्लाई बाय P ओवर Q. इसी तरह से सेकंड हमारे पास यहाँ पर T स्टैंड्स फॉर ट्यूशन. तो ट्यूशन और क्वांटिटी डिमांड का रिलेशनशिप हमने फाइंड करना है. तो ET स्टैंड्स फॉर इलास्टिसिटी ऑफ ट्यूशन. तो इसमें भी डेरिवेटिव ऑफ Q डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ T मल्टीप्लाई बाय T ओवर Q. तो डेरिवेटिव वाली टर्म B2 बन जाएगी और मल्टीप्लाई बाय T ओवर Q एज इट इज आ जाएगा. इसी तरह से इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस ऑफ केन. तो DQ ओवर DPC मल्टीप्लाई बाय PC ओवर Q. तो B3 मल्टीप्लाई बाय PC ओवर Q आ जाएगा. और लास्ट में इलास्टिसिटी ऑफ L लोकेशन ऑफ कैंपसेस. तो इसमें DQ विद रिस्पेक्ट टू लोकेशन DL मल्टीप्लाई बाय L ओवर Q. तो DQ ओवर DL हमारे पास B4 हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा L बाय Q. उसके बाद थर्ड स्टेप इज डेटा कलेक्शन. दिस स्टेज कैन ओनली बी परफॉर्म्ड आफ्टर द डिमांड मॉडल हैज बीन स्पेसिफाइड. अदरवाइज इट इज नॉट नोन फॉर विच वेरिएबल्स वी हैव टू कलेक्ट डेटा. जब तक हम ये जो डिमांड मॉडल हमने अभी ये बनाया है, जब तक ये मॉडल नहीं बनेगा तो हम ये स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि हमने किस चीज का डाटा कलेक्ट करना है. डाटा हमारे पास तीन तरह का हो सकता है: टाइम सीरीज डाटा, क्रॉस सेक्शनल डाटा एंड पूल्ड डाटा. टाइम सीरीज डाटा में हम एक ही चीज का डाटा डिफरेंट टाइम पीरियड्स में ले रहे होते हैं.
क्रॉस सेक्शनल डाटा में हम एक टाइम पीरियड में उस चीज को डिफरेंट जगह पर देख रहे होते हैं। जैसे अभी हमने 1 मंथ में कॉलेज के स्टूडेंट्स का पिज्जा डिमांड देखी है डिफरेंट कॉलेजेस में। तो एक टाइम पीरियड है 1 मंथ का और वो डिमांड हमने डिफरेंट कैंपसेस में देखी है, और पूल डाटा में हम दोनों डाटा को कंबाइन कर देते हैं। फोर्थ स्टेप इज एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स। एस्टिमेशन ऑफ द पैरामीटर्स जो होते हैं हमारे पास, वो कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल्स हैं। अभी जो हमने यहाँ पर B1, B2, B3 इन जिनको कोफिशिएंट कहा है, इनको हम पैरामीटर्स भी कहते हैं। रिलेट्स द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल अपॉन द डिपेंडेंट वेरिएबल। ये कोफिशिएंट या ये स्लोप या पैरामीटर्स हमें ये बताते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आने से डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज आया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन है QD इज इक्वल टू A प्लस B1P। अब B1 हमारे पास एक कोफिशिएंट या एक पैरामीटर है प्राइस का। B1 की जो वैल्यू आएगी, सपोज इसकी वैल्यू 0.7 आती है, तो दैट शोज दैट 70% चेंज बता रहा है प्राइस में। दैट कॉज प्राइस में 1 यूनिट चेंज आने से क्वांटिटी डिमांड 70% यूनिट तक चेंज हो सकती है। Regression analysis is used to calculate these values. Parameters, ये जो हमारे पास B1, B2, B3 and B4 हैं, इनको हम regression analysis से कैलकुलेट करते हैं। इनकी वैल्यूज फाइंड करके फिर हम ये देखते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आने से डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या चेंज आ रहा है। Using ordinary least squares OLS with the particular setup of regression equation, we can now estimate the values of coefficients of the independent variable as well as the intercept term. हमने जो लास्ट इक्वेशन देखी है QD is equal to A plus B1P plus B2T plus B3PC plus B4L। तो यहाँ पर हमारे पास B1, B2, B3, B4 और A इंटरसेप्ट की वैल्यूज हम OLS रिग्रेशन से फाइंड कर सकते हैं। यूजुअली स्टैटिस्टिकल एंड इकोनोमेट्रिक पैकेजेस आर यूज्ड टू एस्टिमेट regression equation using Excel and many other statistical packages such as इसमें SPSS है, इसमें SAS है, eViews है and so on। ये हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होते हैं स्टैटिस्टिकल, जिनके थ्रू हम डायरेक्ट डाटा पुट करके इनकी वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। Results are usually reported in regression equation or table format containing certain information such as, अब यहाँ पर हमें एक एस्टिमेटेड डिमांड इक्वेशन दी हुई है जो हमने किसी सॉफ्टवेयर से ये रिजल्ट्स निकाले हैं, उसमें डाटा पुट करके और ये रिजल्ट्स हमारे पास निकले हैं। इसमें QD इज इक्वल टू 26.67। दिस शोज द वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट A minus 0.088P। This is B1 plus 0.138, B2T minus 0.076, B3 PC minus 0.544L, that is B4L। इस इक्वेशन के नीचे जो हमें पैरेंथेसिस या ब्रैकेट में वैल्यूज दी हुई है, that shows the standard error of estimates। R स्क्वायर हमें दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन R स्क्वायर एडजस्टेड दिया हुआ है 0.67, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट SEE 1.64 फॉर QD दिया हुआ है हमें, ऊपर जो इक्वेशन QD है उसके नीचे ये हमें 1.64 वैल्यू है, एंड F स्टैटिस्टिक्स इज 15.8। ये सारी वैल्यूज एक सॉफ्टवेयर से निकली हुई है। ये आगे हम F स्टैटिस्टिक्स, R स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टैंडर्ड एरर्स ऑफ द कोफिशिएंट आर लिस्टेड इन पैरेंथेसिस। ऊपर इक्वेशन के नीचे जो आपको पैरेंथेसिस में वैल्यूज नजर आ रही हैं, दैट शोज द स्टैंडर्ड एरर्स। मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग डिमांड। अभी जो हमने ये एक डिमांड इक्वेशन देखी है, ये हमारे पास एक फाइनल एस्टिमेशन आई है जिसकी वैल्यूज हमें ये बताएंगी कि हमें उस चीज का
उस चीज की प्राइस का डिमांड के साथ कितना इम्पैक्ट है, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इस इक्वेशन की बेस पर हम डिमांड एस्टिमेट करते हैं और फर्दर डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो ये इक्वेशन एस्टिमेट करने के हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं, कंज्यूमर सर्वे, मार्केट एक्सपेरिमेंट एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स। तो इसमें से कंज्यूमर सर्वे और मार्केट एक्सपेरिमेंट को आज हम कवर करेंगे और स्टैटिस्टिकल मेथड नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो कंज्यूमर सर्वेज क्या होते हैं? सीकिंग इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनायर, इंटरव्यूज एटसेट्रा। नॉर्मली आपने देखा हो कि कभी आपसे किसी ने क्वेश्चनायर फिल कराया हो, तो दैट इज ए कंज्यूमर सर्वे, कि वो अपने डाटा से रिलेटेड एक क्वेश्चंस, उसमें बहुत सारे और ऑप्शंस दी हुई होती हैं जिसको हम क्वेश्चनायर कहते हैं, या कुछ डाटा इंटरव्यू के थ्रू भी कंडक्ट किया जाता है। आस्किंग इंफॉर्मेशन अबाउट देयर कंजम्पशन बिहेवियर, फॉर एग्जांपल बाइंग हैबिट्स, मोटिव्स एटसेट्रा, कि कंज्यूमर से हम उसकी कंजम्पशन हैबिट्स के बारे में पूछ सकते हैं, उसके मोटिव्स के बारे में पूछ सकते हैं। तो एक इंटरव्यू कंडक्ट करके भी हम उससे डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। इसके कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस में दे गिव अप टू डेट इंफॉर्मेशन, लेकिन इसकी वैलिडिटी जरूरी नहीं कि हमें इस चीज की कंफर्म हो ये कि वो हमारे पास एग्जैक्ट हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो वैलिडिटी इसका डिसएडवांटेज भी है। Much useful information can be obtained that would be difficult to uncover in other ways. For example, if consumers are ignorant of the relevant or relative prices of different brands, it may be concluded that they are not sensitive to price changes. कंज्यूमर सर्वे में एक फायदा ये होता है कि अगर उनको किसी और ब्रांड के बारे में, उसकी प्राइसेस के बारे में नहीं पता, तो वो प्राइस चेंज के बारे में सेंसिटिव नहीं होते। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसकी रिलायबिलिटी नहीं रहती, कि वो उस ब्रांड के लिए रिलायबल नहीं रहेगी, वो ब्रांड उनके लिए रिलायबल नहीं रहेगा। And this can be exploited by the firms for their best possible interest. ये इसका एडवांटेज है। और सैंपल बायस का मतलब एरर, तो इस केस में हमें डाटा कलेक्ट करने में एरर भी फेस करना पड़ सकता है। सेकेंड इज मार्केट एक्सपेरिमेंट। Here consumers are studied in an artificial environment. Laboratory experiments or consumer clinics are used to test consumer reactions to change in variables in the demand function in a controlled environment. इसमें एक artificial market बना के या एक artificial environment create करके consumers का behavior देखा जाता है। Need to be careful in such experiments as the knowledge of being in the artificial environment can affect the consumer behavior. और इसमें हमें डिसएडवांटेज ये होता है कि उस आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज भी हो सकता है, जिससे हमारा डाटा या हमारी एस्टिमेशन रॉन्ग भी हो सकती है। इसका एडवांटेज, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द कंज्यूमर्स takes place rather than something of a hypothetical theoretical model. Hypothesis में हम theoretical models को देखते हैं, फिर एक hypothesis बनाते हैं। इसमें हमें एक फायदा ये होता है कि हम डायरेक्ट कंज्यूमर के साथ बात कर रहे होते हैं और डायरेक्ट हमें डाटा मिल रहा होता है। एंड डिसएडवांटेज, there is less control in this case and greater cost. Furthermore, some customers who are lost there at this stage may be difficult to recover. And experiments need to be long lasting in order to reveal proper results. इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि ये कॉस्ट टेकिंग है और ऐसे कंज्यूमर जिनको लॉस हो जाए तो उनको रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। और सेकेंडली, इसमें हमें बार बार लॉन्ग लास्टिंग एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं और उसकी बेस पर हमें रिजल्ट फाइनलाइज करने पड़ते हैं। So that's all for today's lecture. Thank you. Stay safe.